اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، یہ دور جو چل رہا ہے یہ نوٹوں کا دور چل رہا ہے۔ ہم 10-20 روپے میں بھی ایمان کا سودا کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کائنات کی ہر چیز، کائنات کا چاند، کائنات کا سورج، کائنات کی ہوائیں، کائنات کی فضائیں، کائنات کی زمین، کائنات کا آسمان میں نے تمہارے سامنے جھکایا اور تمہیں صرف اپنے سامنے جھکایا۔ سب کو تمہارے سامنے جھکایا، لیکن ہم مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر جتنے ہیں سبوں کو صرف اپنے سامنے جھکایا۔ کہا اپنے آپ کو رسوا نہ کرو، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو مسلمانوں، ہم نے تمہیں جھکنے کے لیے نہیں، ہم نے تمہیں جھکانے کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں مسخر ہونے کے لیے نہیں، ہم نے تمہیں مسخر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے تمہیں کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے نہیں، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے نہیں، کسی اور کے سامنے رکوع کرنے کے لیے نہیں، چند نوٹوں کے خاطر کسی کے سامنے ہم نے تمہیں جھکنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ مسلمانوں، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ اگر عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کے سامنے نہ جھکو۔ شاید ہمیں بھی پتہ نہیں، ایمان کا سودا کر دیتے ہیں تو اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ایک بازارو عورت اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ اپنے جسم کا سودا کرتی ہے، ہم اپنا ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے زنا کو اور شرک کو اکٹھا بیان کیا، فرمایا الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک۔ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو لوگوں، بدکار عورت سے کوئی بھی غیرت مند اچھا انسان شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بدکار عورت کو صرف بے غیرت مرد، مشرک مرد، زناکار مرد، بدکار مرد ہی اسے اختیار کرتا ہے، اسے حاصل کرتا ہے، اس کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ پروردگار یہ بدکار اور یہ بے غیرت مرد کون ہے؟ فرمایا لا ینکحها الا زان او مشرک۔ بدکار مرد وہ ہے جو غیروں کی بیٹیوں کے پاس جاتا ہے، بدکار مرد وہ ہے جو ماں بہن یعنی کسی کی بھی بیٹی کے پاس جاتا ہے، یا کسی بھی اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار میں جاتا ہے۔ اللہ نے زنا کو اور شرک کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو اکٹھا بیان کیا، اور آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ ہم کتنے شوق کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ جلسہ کرتے ہیں، ماحول کیا بنتا ہے؟ ماحول کیا ہم بناتے ہیں؟ صرف برائی ہی برائی ہوتی ہے۔ کچھ نوجوان
कुछ लोग तो ये मकसद ही से जाते हैं, गलत नीयत लेकर ही घर से निकलते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िना को और शिरकी को इकट्ठा बयान किया है, फरमाया कि दोनों के अंदर गैरत नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ज़िनाकार मर्द या ज़िनाकार औरत या मुशरिक मर्द और मुशरिक औरत में कोई फर्क नहीं है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? एक मुशरिक इंसान यानी गैर मुस्लिम इंसान के साथ आपका कंपेयर हो रहा। नौजवानों, हैसियत क्या रही तुम्हारी? एक गैर मुस्लिम के साथ आपको बराबरी किया जा रहा है, लेकिन बड़े शौक और जोश के साथ जलसा सुनने के लिए तो जाते हो, लेकिन जलसा से ज्यादा बुराई की तरफ सोचते हो कि कहां से बुराई करे और किस तरह बुराई करे। आज कोई भी जलसा महफूज नहीं है, कोई भी नहीं। पूरे इलाके के अंदर कहीं भी जलसा हो, यह सुनने को नहीं आता कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमान बना, लेकिन यह सुनने को जरूर आता है कि फलाने के लड़के ने फलाने के लड़की को लेकर भाग गया। जलसा इसलिए कर रहे हैं। सोचना चाहिए, और लोगों को भी सोचना चाहिए जो इस पर ध्यान नहीं देते, जो एक जिम्मेदार बनकर बैठे हुए हैं और ये सोचते हैं कि यही हमारी जिम्मेदारी है कि सिर पे जलसा करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िना को और शिरकी को इकट्ठा बयान किया, दोनों को फरमाया कि उसने अपने शोहर का घर छोड़ा, उस औरत ने अपने माँ बाप का घर छोड़ा, और उस इंसान ने अल्लाह के घर को छोड़कर किसी और के सामने सजदा किया, तो दोनों की हैसियत एक है, दोनों बराबर है। और बेगैरत मर्द कौन है? जो गैरों की बेटियों के पास जाता है। बेगैरत इंसान वो है, बेगैरत नौजवान वो है जो गैर औरत के पास जाता है, और गैरतमंद इंसान वो है जो सिर्फ न गैर औरत के पास जाता है, न किसी की भी बहन बेटी के पास जाता है, न अल्लाह के दर को छोड़कर किसी और के दर पे जाता है। आज हमारे मुआशरे की हालत बहुत खराब है, और हम इसे सुधारने की कोशिश भी नहीं कर रहे कि मुआशरे के अंदर जो इतनी बुराई फैली हुई है, ये कैसे सुधारा जाए, कैसे इस पर काम किया जाए, इसको रोका जाए। इस पर हमारी गौर व फिक्र नहीं है, हमें सिर्फ हम वो सोचकर बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, मुसलमानों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाहि व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। कोई भी बाप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अपने बेटे की जुदाई, वो भी 40 साल तक। 40 साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम दूर रहे थे याकूब अलैहिस्सलाम से, लेकिन दुआ करते रहे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह बेटा ढूंढ ढूंढ के थक चुका हूँ, अब ढूंढने की भी हिम्मत नहीं रही। परवरदिगार 40 साल ढूंढते हुए हो गए, अब ढूंढूं तो कैसे ढूंढूं? अल्लाह, उसके गम में आंखों की बीनाई भी सफेद हो गई है, आंखें भी सफेद हो गई है। अब ढूंढूं तो कैसे ढूंढूं? अब तलाश करूं तो कैसे करूं? वतवल्ला अन्हुम वक़ाल। उस दिन याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इतना रोए कि रो रो के आंखों की बीनाई सफेदी में तब्दील हो गई, आंखों की स्याही सफेदी में तब्दील हो गई, आंख में देखने की कोई जगह बाकी ना रही। लेकिन फिर भी किसी के दरवाजे पर नहीं गए,
किसी कबर हो या किसी बाबा हो या किसी मुर्शिद वली बुजुर्ग किसी के पास नहीं गए। इन्नमा अश्कु बथी व हुस्नी इलल्लाहि व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। अल्लाह बेटों को दौड़ा दौड़ा के थक चुका हूँ, परवरदिगार काफिले वालों से पूछ पूछ के थक चुका हूँ। अल्लाह लोगों से अपने यूसुफ के बारे में सवाल कर कर के थक गया हूँ। परवरदिगार सबसे थक चुका हूँ, लेकिन तेरी बारगाह से तो नहीं थका। परवरदिगार सबसे उम्मीद खत्म है परवरदिगार, लेकिन तेरे दरवाजे से उम्मीद कभी खत्म नहीं हो सकती। भरोसा करना पड़ता है, यकीन करना पड़ता है, ईमान को मजबूत करना पड़ता है। ऐसे ही इस्लाम नहीं फैल गया। आप जैसे और हमारे जैसे मुसलमान होते ना तो सिर्फ एक खिरवा के अंदर इस्लाम नहीं फैला सकते, पूरी दुनिया तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हम ना सिर्फ दिखावे के मुसलमान हैं। हमारी सोच सिर्फ मुसलमान की सोच है। अगर कोई 5,000 रुपया दे देना और कहे कि किसी के बारे में गिबत करते रहो, उसके बारे में कोई गलत बात फैलाते रहो, तो हम फैलाना शुरू कर देंगे, वो कोई भी रहे। यह हालत है हमारी। हम मुसलमानों में एकता नहीं है, हम मुसलमानों में इत्तेहाद व मजबूती नहीं है कि नहीं, अगर कोई मस्जिद का इमाम छोटी सी गलती कर दे, उस वक्त आपके जुबान पे सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल। इसके लिए मैं कहता हूं कि ये मुसलमान, इन मुसलमानों के अंदर वो ईमान नहीं जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के पास थे, कि वो दीन के लिए लड़ते थे, दीन को मजबूत करने के लिए लड़ते थे, कुरान और हदीस पर अमल करने के लिए, कराने के लिए लड़ते थे, कुरान और हदीस पढ़ाने और सिखाने वालों ऊपर जुल्म नहीं करते थे। आज हमारे मुआशरे की यह हालत है। हम उनसे सवाल नहीं करेंगे, सवाल करेंगे तो डर है कि कहीं कुछ कर ना दे। डर इस बात का है कि कहीं मेरा नुकसान ना कर दे। नुकसान करने वाले ये लोग नहीं, नुकसान भी देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। निगार से डरो, जिसने पैदा किया, पैदा करने के बाद जिस्म के अंदर जान दी, चलने के लिए पैर दिए, छूने के लिए हाथ दिए, देखने के लिए कान दिए, उससे तो डरते नहीं हो। अगर डरते तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते। डरना जिससे चाहिए उससे डरते नहीं हो, डरना नहीं चाहिए उससे डरते हो, जिससे सवाल करना चाहिए उससे डरते हो, और जो तुम्हें सवाल करेगा जवाब देना पड़ेगा उससे तुम दूर हो। सोचो कि हम कैसे मुसलमान हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अंधे हो चुके हैं, उठे, दीवार से टकराए, दीवार माथे पर लगी, खून का फव्वारा छूटा, नबी की पेशानी खून से तरबतर हो जाती है। मुसलमानों, नबी की पेशानी से खून निकलता है। उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम की जुबान से लफ्ज़ निकलती है, परवरदिगार देख, अब तो यूसुफ के गम में आंखों की बीनाई भी चली गई है। परवरदिगार यूसुफ के गम में, यूसुफ को तलाश करते करते मेरी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई है। इन्नी लअजिदु रिह यूसुफ लौला तुफन्निदून। 40 साल तक ढूंढे ढूंढे ढूंढे, लेकिन दुनिया वालों से नहीं डरे। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इतना जुल्म किया गया कि अगर आज हम मुसलमानों पर इस तरह का जुल्म किया जाए तो हम कुछ भी कर देंगे। उतना ज्यादा उन पर जुल्म किया गया, उन्हें तकलीफ दी गई, लेकिन ऐसा हुआ, एक वक्त आया कि वो खुद बादशाह हो गए। किस पर भरोसा किया? जब भी कोई मुसीबत आती आप अल्लाह को देखते,
इन दुनिया वालों को नहीं देखती है, कुछ नहीं कर सकते यार, ईमान को मजबूत करो, कुछ नहीं कर सकते। अपना आएगी इसके बाद। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह आंखों की बीनाई खत्म हो गई है, अब ढूंढने की भी हिम्मत नहीं रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहते हैं ओ यूसुफ, आज तुम्हारे बाप ने मुझसे मांगा है, कल तक काफिले वालों से मांगता था, कल तक गांव वालों से पूछता था, कल तक अपने बेटों से पूछता था, आज हमसे सवाल किया है, जाओ एक कासिद को मिस्र से कमीज देकर भेजो। कासिद मिस्र से कमीज लेकर जाता है। वही बाप है जिसके घर में, जिसके इलाके में यूसुफ खुद बड़ा हुआ है, पता नहीं है। मिस्र से कमीज जा रही है, लेकर कोई जा रहा है। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से कहते हैं इन्नी लाजिदु रिह यूसुफ लौला तुफन्निदून, और मेरे बेटो अगर तुम मुझे दीवाना ना कहो, अगर तुम मुझे पागल ना कहो, अगर तुम मुझे बुरा भला ना कहो, तो मैं एक बात कहूँ। बेटों ने कहा बाबा जान कहो क्या बात है। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं और मेरे बेटो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। पुकारा किसको था? इन्नमा अश्कु बसी व हुस्नी इलल्लाहि व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। पुकारा अल्लाह रब्बुल आलमीन को था। अभी यूसुफ नहीं आया, कमीज सिर्फ आई है, चेहरे पर डाली। अल्लाह ने कहा याकूब देख, तूने मुझे पुकारा था, देख मुझे पुकारने वालों का फिर क्या अंजाम होता है। यूसुफ कहा यूसुफ को अभी नहीं दिखाना है, यूसुफ को तभी दिखाएंगे जब तू उसी तरह का हो जाएगा जिस तरह यूसुफ के जुदाई के वक्त तू था, उसी तरह फिर दिखाना है। यूसुफ की कमीज आती है, चेहरे पर डाली जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई को वापस कर देता है। मुसलमानों, अल्लाह तो वो है, पुकारना हमारा काम है, अल्लाह वो है, सजदा करना हमारा काम है, अल्लाह वो है, झुकना हमारा काम है। इन दुनिया वालों के सामने ना झुको मुसलमानों, कयामत के दिन दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। दुनिया वालों के सामने अगर झुक गए तो याद रखना, दुनिया की दौलत तो छोड़ दो, दुनिया की सारी चीजें एक तरफ हो जाए, लेकिन उस इंसान को नहीं बचा सकती जो अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकता है। और आज हम 500 में बिक जाते हैं, ईमान का सौदा कर देते हैं। 500 रुपया। इमाम